Hi everyone, myself Chef Pranita Pawar. I'm the owner and the chef of the Cake Secrets. I have a small cake studio set up in Jaipur, and currently due to lockdown I am stuck in Nasik, but yeah, originally I'm from Jaipur. So today we are going to make some really nice cake, which will be a quick cake, which will take a bit of baking time, but I'm going to quickly show the recipe. And the ingredients that are mentioned, I have already mentioned it in the description of the live video, if you can see. And if you have any queries, you can surely ask me in the middle of the live session, or later also you can comment, or you can ask me directly on my page. My page is the Cake Secrets on Facebook and Instagram as well. So today we are going to make the pineapple upside down cake, for which you will require butter. That's the Amul butter that we are using. I'm using the unsalted white butter, but you are free to use any kind of butter you want. And then there is pineapple. You can use tinned pineapple or fresh pineapple. I am using tinned pineapple. For fresh pineapple, you will have to just cut it into slice and then put it in a cooker, or just boil it in with water and some sugar into it. And then there are tinned cherries, or you can use fresh cherries as well, and this is optional as well. Then there's some brown sugar, just for the caramelization taste. Then there is baking powder. Then there is white vinegar, baking soda, pineapple essence, and finally the maida. And we are going to use one of the most favorite products of Amul, that is the Mithai Maid. So that is our secret for an eggless cake recipe. So the butter and the Milkmaid together, the Mithai Maid and the butter, are going to make the cake fluffy and nice. So these are the main hero ingredients of our cake to make it eggless. So basically, first rule of baking is we need to make sure that all our ingredients are at room temperature. So I've already measured out these ingredients and kept them about like 15 minutes before starting everything. So the main important thing you need to remember is they need all the ingredients, even the butter, the condensed milk, everything. Even if you store it in the fridge, take it out at least 15 to 20 minutes and let it come at room temperature, and then start to whip it. Okay. So while we make the cake batter, what I'm going to do is I'm going to start the oven just for preheating purpose. Okay. So I'm going to preheat the OTG. I have an OTG. I'm putting it at 180 degrees Celsius and putting both the rods on. So the bottom and the top, both rods are on. And just putting on stay on for now, but we are going to bake it for at least 30 minutes after this. So I'm using a 6-inch tin, a cake 6-inch tin. For the mentioned recipe and the proportions, you can use a 6-inch or a 7-inch tin. It's your choice. If you want to double the ingredients, go for an 8 or a 9-inch tin, and the baking time will double as well. Okay. So I'm just going to put some oil. So we're just going to have some oil into it. Just going to brush it so that it's applied everywhere. We're just going to do this procedure so that it doesn't stick. The cake comes out easily and freely from the cake tin. मेरे को हिंदी का भी रिक्वेस्ट आया, सो आई ट्राई कि मैं दोनों इसमें समझाऊँ आपको. सो पहले मैंने केक टिन लिया है, वो 6 इंच का है आज के लिए, जो इंग्रेडिएंट्स मैंने स्पेसिफाई किए हैं उसके लिए. ठीक है. और फिर ये बेकिंग पेपर है, पार्चमेंट पेपर भी बोल सकते हो, या फिर आप बटर पेपर, आप कोई भी यूज कर सकते हो. सो बेसिकली इसको क्यों यूज करते हैं कि नीचे का जो पोर्शन होता है वो निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है केक का, अगर वो थोड़ा सा भी नीचे रह गया तो बेसिकली द पार्चमेंट पेपर और द बेकिंग पेपर विल मेक श्योर कि आपका केक नीचे से बिल्कुल चिपके ना. ठीक है. तो मैं इसको नीचे लगा रही हूँ ऐसे. ओके. फिर जो ब्राउन शुगर है, कैरेमलाइज्ड ब्राउन शुगर, आप डरमेरा शुगर भी यूज कर सकते हो, ब्राउन शुगर यूज कर सकते हो, या फिर आपको वो कैरेमलाइजेशन नहीं चाहिए होगा तो वो आप ओमिट भी कर सकते हो. सो दिस इज बेसिकली टोटली ऑप्शनल. सो आई एम जस्ट गोना पुट सम ब्राउन शुगर ऑन द बेस. नीचे थोड़ी ब्राउन शुगर डाल दो. ये आप पे है आपको कितनी डालनी है. तो मैं करीबन 2 टेबलस्पून तक मैं इसको नीचे स्प्रेड कर रही हूँ.
और फिर मैं क्या करूँगी, आप डिज़ाइन कोई भी कर सकते हो, बिकॉज जो आप नीचे जैसे डिज़ाइन करोगे वही आपको ऊपर मिलेगा। तो ये पाइनएप्पल के पीसेस हैं, ये मैंने एक बीच में अंदर रख दिया, और फिर ये मैंने यहाँ पे थोड़े से हाफ कट पाइनएप्पल्स है, तो ये मैं साइड से इनको सेमी सर्कुलर इसमें लगा दूंगी। आप किसी भी डिफरेंट डिज़ाइन से अरेंज कर सकते हो। आप इनको वर्टिकल रख सकते हो, आप इनको हाफ कट 1/4 कट करके भी रख सकते हो। इट डिपेंड्स कि आपकी साइज कैसी है एंड आप कैसे अरेंज कर सकते हो उनको। बट ये कैसे होता है कि ये केक में क्रीम नहीं होता है, तो इसीलिए अपन इसको ऊपर से अट्रैक्टिव कैसे दिखेगा ये इसी पे से समझेगा। फिर अपने जो चेरीज हैं 10 चेरीज, उनको अपने को बीच बीच में प्लेस करना है। सो दीज चेरीज बेसिकली जो कलर कॉम्बिनेशन है उसको बैलेंस करने के लिए काम में आते हैं, तो थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्टिव बनता है अपना केक। सो ये सबसे पहले आपकी चीज होती है ओवन ऑन करके आपका बेक टिन रेडी करना है। और ये आपका टिन रेडी हो गया। सो ये जो डिजाइन नीचे दिख रही है, ये डिजाइन आपकी आएगी ऊपर के साइड पे, जब पाइनएप्पल केक ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है, नाउ अपन बैटर पे प्रोसीड करते हैं। आई होप आई एम ऑडिबल, आई एम क्लियर। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, किसी को नहीं सुनाई दे रहा होगा, दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो प्लीज कमेंट करना। सो ये करने के लिए मैंने लिया है बटर विच इज 65 ग्राम्स। आप कोई भी बटर यूज कर सकते हो, अगेन सॉल्टेड भी चलेगा, अनसॉल्टेड भी चलेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक बीटर है, आप इससे भी यूज कर सकते हो, या फिर आप हाथ से जो विस्क होता है उससे भी फेंट सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोसेस इसका होता है कि फैट, दैट इज दी बटर नीड्स टू बी एरिएटेड। इसको फ्लफी बनाना है अपने को। तो सबसे पहले अपने ये करेंगे। सो आई एम जस्ट गोना यूज एट 2 एंड ये अपन बीट करेंगे। हाँ, एक रिक्वेस्ट चाहिए कि बटर रिप्लेस कर सकते हो ऑयल के साथ, तो जरूर रिप्लेस कर सकते हो, मगर एक एडवाइस मेरी यह होती है कि समर सीजन में रूम टेम्परेचर पे बटर सॉलिड होता है और जो ऑयल होता है वो एकदम लिक्विड होता है। विंटर सीजन में भी ऑल्सो रूम टेम्परेचर पे बटर सॉलिड होता है एंड ऑयल होता है वो बिल्कुल लिक्विड होता है। तो जब क्या हो जाता है कि इफ जो ऑयल होता है वो एकदम लिक्विड होता है विंटर सीजन में भी या सो जब आप इसको रूम टेम्परेचर पे जब आप रखते हो किसी केक को, अगर ऑयल यूज करते हो तो ये समर सीजन में बहुत ज्यादा मॉइस्ट हो जाएगा और बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। अगर बटर यूज करते हो तो उसका जो टेक्सचर है वो काफी अच्छा एंड सॉफ्ट रहेगा, ज्यादा मॉइस्चर भी नहीं आएगा उसमें, and it will be really tasty. Another thing is why you use butter. Butter से थोड़ा ज्यादा टेस्टी होता है। So I think so. I hope it's clear. I would advise कि आप हाफ एंड हाफ भी कर सकते हो। अगर 65 ग्राम में से आप 30 ग्राम बटर ले लो, आप बाकी के 35 ग्राम आप ऑयल ले लो, वो भी चल सकता है। ठीक है, so we are just gonna whip it. ठीक है, ये काफी लाइट एंड एरिएटेड हो गया है। सो एक बार अपन इसको स्पैचुला से, ये देखो एकदम काफी इसका टेक्सचर एरिएटेड फ्लफी हो गया है। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे अमूल मिठाई मेड। ओके, सो ये जब आप एगलेस केक बनाते हो, सो दिस इज द वन कि आप यूज कर सकते हो। इसी से आपका एगलेस केक बहुत अच्छा एंड स्पॉन्जी बनेगा।
तो आप इसको पूरा 200 ग्राम का छोटा डिब्बा है ये, बड़ा डिब्बा भी आता है अमूल का, आप इसमें से हाफ यूज कर सकते हो, इसको वापस सील करके फ्रिज में रख सकते हो, या फिर आप 200 ग्राम का जो छोटा डिब्बा आता है वो पूरा यूज कर सकते हो। और इसमें अपन मिल्क मेड यूज कर मिठाई मेड यूज कर रहे हैं, तो आपको शुगर की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो भी शुगर मिठाई मेड की है वही काफी है केक के लिए। सो ये मैंने पूरा 200 ग्राम ऑफ मिठाई मेड इसमें डाल दिया है। अपन अभी इसको वापस एक बार बीट करेंगे सो दैट एवरीथिंग गेट्स इनकॉर्पोरेटेड। आप इसमें मिल्क मेड भी यूज कर सकते हो, आप घर पे बनाया हुआ कंडेंस्ड मिल्क भी यूज कर सकते हो, बट फॉर गुड रिजल्ट्स, ट्रस्ट मी, आई हैव बीन बेकिंग इन दिस फील्ड फ्रॉम पास्ट 14 years, और जितना अच्छा रिजल्ट मेरे को मिठाई मेड अमूल का नहीं आया है, उतना जितना अच्छा आया है उतना बाकी इसके नहीं आया है रिजल्ट। सो इसीलिए आई ट्रस्ट मोर ऑन मिठाई मेड रादर देन डिफरेंट एनी अदर कंपनी और होम मेड एज वेल। सो ये आपका नाइस एंड फ्लफी टेक्सचर हो गया है दोनों का, मिठाई मेड एंड बटर का। अब इसमें हम डालेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स, जिसमें है अपना मैदा विच इज 125 ग्राम, 125 ग्राम। ये मैंने ऑलरेडी छान के रखा हुआ है, सीव किया है। सो 3 टाइम्स, क्योंकि अपन एगलेस केक बना रहे हैं, सो ये स्टेप बिल्कुल किसी ने भी स्टेप नहीं करना है। मैंने ये ऑलरेडी 3 बार छान के रखा हुआ रहता है। सो ये जरूर स्टेप यूज करना, बिकॉज इसी से आपका लाइट एंड फ्लफी होगा केक। इसके बाद मैं डालूंगी 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर यू कैन यूज ऑफ एनी कंपनी, नॉट स्पेसिफाइड कंपनीज एज सच। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, ठीक है। एंड अब मैं इसको बीट नहीं करूंगी तुरंत, मैं इसको हाथ से एक बार मिक्स करूंगी, फोल्ड करूंगी इससे। ओके, एक क्वेश्चन है कि इंस्टेड ऑफ कंडेंस्ड मिल्क क्या यूज कर सकते हैं। सो आई वुड से सी दिस इज अ एगलेस केक। एगलेस केक में देयर आर ओनली 2 सब्सटीट्यूट्स। एक तो दही है, कर्ड, योगर्ट या फिर मिल्क मेड। बट दही से क्या होता है कि उसे ये जैसे पाइनएप्पल, ये जो केक है ये काफी सॉफ्ट है और उसकी रेसिपी टोटली डिफरेंट है, एंड वो दही से थोड़ा सा ज्यादा पानी छोड़ता है। सो इसीलिए बेस्ट प्रोडक्ट इज मिठाई मेड विच इज मच बेटर, एंड इसी से वो टेक्सचर भी होगा एंड लॉन्ग लास्टिंग भी होता है। दही वाला जल्दी ज्यादा खराब भी हो सकता है, बट जो मिल्क मेड वाला केक है वो काफी दिन तक, 2-3 दिन तक आप उसको स्टोर कर सकते हो आराम से। आप एक दिन तो उसको बाहर रख सकते हो 24 आवर्स के लिए, एंड फिर 2 दिन आप इसको फ्रिज में रख सकते हो रेफ्रिजरेट करके। तो ये मैंने मिक्सचर इसका पूरा फोल्ड कर दिया है, ड्राई इंग्रेडिएंट्स एंड वेट इंग्रेडिएंट्स ऐड करके। ये देखोगे आप काफी वो गाढ़ा मिक्सचर हो गया है। सो केक का अपना फ्लोई एंड अच्छा मिक्सचर होना चाहिए। सो इसमें अपन अभी ऐड करेंगे 75 ml ऑफ वाटर। सो दिस इज नॉर्मल प्लेन वाटर दैट आई एम गोना ऐड। इसमें ऐड करेंगे विनेगर। विनेगर थोड़ा सा इसको हेल्प करेगा लाइट एंड। क्वेश्चन, हाउ मच ऑफ बेकिंग पाउडर हैव यू? Yeah, baking powder is 1/2 teaspoon. So if you see the description of the live video, I have already specified the ingredients. Ingredients मैंने दे रखे हैं, उनके measurements भी दे रखे हैं। अगर क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, मगर ये है 1/2 teaspoon बेकिंग पाउडर एंड 1/4 teaspoon बेकिंग सोडा। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून ऑफ विनेगर, व्हाइट प्लेन विनेगर। इससे थोड़ा सा क्रम्बली एंड नाइस फ्लफी टेक्सचर बनेगा केक का, इसीलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। एंड डालेंगे
हाफ टी स्पून ऑफ पाइनएप्पल एसेंस, क्योंकि अपन पाइनएप्पल का बना रहे हैं तो अपन पाइनएप्पल एसेंस डाल रहे हैं इसमें। मैं इसको हल्का फोल्ड करूंगी एक बार। बेकिंग पाउडर इज हाफ टी स्पून। होममेड कंडेंस्ड मिल्क बिल्कुल चलेगा, आप होममेड कंडेंस्ड मिल्क यूज कर सकते हो। Can you use milk instead of water? यू कैन डेफिनेटली यूज मिल्क, यू कैन यूज सोडा। अगर आप इसको थोड़ा सा अगर इसको ऑरेंज फ्लेवर भी देना होगा, आप फैंटा यूज कर सकते हो, आप कोई भी लिक्विड फॉर्म में यूज कर सकते हो। और अब मैं इसको सिर्फ 1 पे एक 30 सेकेंड्स के लिए घुमाऊंगी, जस्ट टू इनकॉर्पोरेट एवरीथिंग टुगेदर। ये 1 टेबल स्पून लेना है। हाँ, Can oil be used instead of water? Can we use ENO instead of baking soda? सो ये अपना हो गया है। Okay, there is a question. Can we use ENO instead of baking powder? नो, आई वोंट सजेस्ट दैट कि इनो यूज कर सकते हो बेकिंग पाउडर, बिकॉज बेकिंग पाउडर में इट्स सोडा बाय कार्ब, it's soda by carb plus different constituents into it, and ENO is just it's soda by carb only. So I would suggest कि जितना proportion baking soda का है और जितना proportion baking powder का है वही use करना। Can we use lemon juice? Yes, you can definitely avoid vinegar. Vinegar is totally optional. You can use lemon juice if you want, but it's totally optional. ऐसे जरूरत नहीं है। लेमन जूस विनेगर का काम बस इतना है कि वो थोड़ा सा फ्लफीनेस एंड थोड़े जो क्रम्स होते हैं ना, वो अच्छे बहुत अलग अलग से क्रम्स बनते हैं उसके, इसीलिए हम उसको यूज करते हैं। ये अपना टेक्सचर हो गया है। दिस हैज टू बी, कैन यू प्लीज फोकस ऑन दिस? सो दिस हैज टू बी फ्लोई टेक्सचर। सो बेसिकली इसका ये कंसिस्टेंसी आपके बैटर का बिल्कुल यही होना चाहिए। सो आप देख सकते हो एकदम लाइट है, ज्यादा गाढ़ा भी नहीं है, और बिल्कुल फ्लोई कंसिस्टेंसी है, ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी है इसकी। अगर एग्स डालने हैं तो एग्स डालने हो तो टोटली अलग रेसिपी है उसकी। एग्स का इसके साथ नहीं आप डाल सकते हो, फिर एग और मिठाई में दोनों एक साथ नहीं डाल सकते हो। सो दिस इज आवर टिन विच वी हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। सो ये बिल्कुल हल्के से इस पे इसको ड्रॉप करना है, ताकि ये नीचे का जो पूरा सेटिंग है वो अपना डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो अपन बैटर इसको धीरे से इस पे डालेंगे, सो दैट ये नीचे वाला बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो। can we use oranges instead of pineapple? आप बिल्कुल ऑरेंजेस यूज कर सकते हो, आप एप्पल यूज कर सकते हो, आपको जो फ्रूट चाहिए। सो बेसिकली आई विल जस्ट शेयर अ स्मॉल स्टोरी कि हाउ दिस पाइनएप्पल केम इनटू बीइंग। सो पहले जब केक बनाते थे या फिर मीठा खाना होता था, तब आयरन के स्किलेट्स यूज करते थे बड़े वाले, और वो डायरेक्टली फायर पे रखते थे, और फायर पे डायरेक्टली वो रखने से बहुत ज्यादा हीट से वो केक बर्न हो जाता था उनका बैटर। सो उन्होंने क्या शुरू किया, उन्होंने फ्रूट्स लाइन करने शुरू कर दिए नीचे के साइड पे और उसके ऊपर बैटर, ताकि वो केक जल ना जाए नीचे से। सो दैट इज हाउ दिस केक केम इनटू बीइंग। सो पहले ये पाइनएप्पल का तो आई थिंक सो 1901 से शुरू हुआ पाइनएप्पल डालना, when this actually Hawaiian producer of pineapple started came into being. But उसके पहले normal fresh fruits भी डालते थे लोग। So you can put pineapple, you can put apple, you can put oranges. आप जैसे मैंने pineapple essence यूज किया, उसके जगह पे orange squash यूज कर सकते हो, Fanta यूज कर सकते हो water के जगह पे। So you can totally change your recipe. The basic recipe जो है butter, condensed milk, मैदा, baking powder, baking soda, ये 5 ingredients आपके constant रहेंगे। बाकी आपको जो फ्लेवर डालना है आप उसमें ऐड कर सकते हो, बिल्कुल आपके चॉइस पे है वो सारे। सो ये अपना हो गया है पूरा टिन रेडी। क्या है क्वेश्चन? व्हाट्स द शुगर? सो इसमें जैसे मैंने अपने पहले भी बोला था, ये मिठाई में यूज किया है। सो वी आर नॉट पुटिंग एनी शुगर एज सच, क्योंकि ये काफी मीठा होता है, इससे अपने को कोई मीठा बाकी और शुगर ऐड करने की जरूरत नहीं है ये केक के लिए।
आप जरूर फ्रेश पाइनएप्पल यूज कर सकते हो. फ्रेश पाइनएप्पल लाओगे तब आप उसको स्लाइस कर लेना एंड देन उसको बॉईल करना पानी और थोड़ा सा शक्कर डाल के, शुगर सिरप में उसको थोड़ा बॉईल करना है. आप उसको फटाक से बनाने के लिए कुकर में एक सीटी भी दे सकते हो, आपकी चॉइस है बिल्कुल. सो ये मैं डाल रही हूँ अपने बेकिंग के लिए. सो इसका बेकिंग ये साइज के लिए और ये मेजरमेंट्स के लिए 30 to 35 मिनट्स है. इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन योर ओवन कि ओवन कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कितना क्वांटिटी है, क्या है. बट ये साइज के लिए अप्रोक्सीमेटली 30 to 35 मिनट्स आपको लगेंगे ये साइज केक के लिए. सो मैं इसको बिल्कुल डाल रही हूँ बेकिंग के लिए 30 to 35 मिनट्स के लिए. मैंने दोनों रॉड्स ऑन रखे हैं, नीचे का भी ऊपर का भी. सो दोनों रॉड्स ऑन है एट 180 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पे बोथ रॉड्स ऑन एंड फॉर 30 मिनट्स. So I'll put 35. So once it's done, I'll understand कि और 5 minutes रखना है कि नहीं. But it will be approximately 30 to 35 minutes. So the baking soda and baking powder. So there's a question asking difference between baking soda and baking powder. Baking powder में baking soda होता ही है. It is the same, but baking powder has extra constituents into it. That is why they both are different. I am not really sure about the chemical composition of baking soda and baking powder both, but I do know that baking powder consists baking soda plus the other ingredients. So that is why we need to use both of them. Any other question? Once more the recipe. Sorry? Measurements in the recipe. Okay, so if you go to my live description, can you see the measurements over there? I have already given the ingredients and the measurements besides it. Is it visible? So let me know, or else I will post it again in the comment section. You can take it from there as well. So once the video is over, I'll put it in the comment section as well. It will be posted. For baking cake, OTG is best or microwave? So baking cake, I have got ये बहुत अच्छा question because I'm getting a lot of queries for it. So for baking, I would suggest OTG is the best thing. I just opt for OTG. मेरे पास माइक्रोवेव भी है which has convection in it, but माइक्रोवेव में the cooking doesn't happen evenly. It is pointed, it is concentrated heat. So I avoid using microwave, and the best is OTG, or you can also do it on a gas. So gas पे आप छोटा एक बर्तन रख के उसके ऊपर स्टैंड रख के उसमें रख सकते हो आप. So directly contact नहीं होना चाहिए गैस पे और हीट से, but आप उसके ऊपर रख सकते हो. While baking in cooker, do we put water or salt at the base? You don't have to put salt or water, nothing. You can just put a stand. You just थोड़ा सा उसको elevate करना है. Directly नीचे की कुकर के नीचे के बेस पे contact नहीं होना चाहिए. So आप छोटा एक रिंग रख दो या फिर एक दूसरा छोटा सा प्लेट रख दो और उसके ऊपर आप अपना केक का वो बर्तन रख सकते हो. My cakes get dry crust. What how to solve it? So I need to check what kind of recipe you are using. Maybe you also need to check what the oven temperature is. बहुत बार क्या होता है, see oven is basically a machine and it has a wear and tear problem. उसका जो thermostat होता है वो thermostat controls the temperature of the oven. So अगर आपका thermostat थोड़ा भी खराब हो जाता है कभी, तो वो जो temperature अपने को जिस पे बेकिंग करना है वो मेंटेन नहीं हो पाता, तो वो ज्यादा बेक हो रहा है या फिर कम बेक हो रहा है. और क्रस्ट से मेरे को ऐसे शायद लग रहा है कि वो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो क्रस्ट फॉर्म हो रहा है. एंड ऑल्सो द मॉइस्चर कंटेंट उसमें थोड़ा सा कम है. सो मे बी यू कैन जस्ट इंक्रीज थोड़ा सा वाटर कंटेंट इनटू इट और मे बी सम ऑयल इनटू इट. सो वो बैलेंस करना होगा आपको आपके रेसिपीज के साथ. Can you please repeat about the batter? The batter. Okay, so once again I'll just repeat the batter how I made. So first पहले अपन ने सबसे पहले बटर लिया, अमूल बटर. अमूल बटर को अपने अच्छे से फेंटा. So 65 grams of butter. So we just whipped it with the electric beater, or you can use a whisk. अपना जो wired whisk होता है उससे बीट करना है आपको उसको अच्छे से. And make it light and fluffy. एकदम हल्का बनाना है, light and fluffy बनाना है आपको. उसके बाद आप उसमें ऐड करोगे मिठाई मेड. अमूल का मिठाई मेड ऐड करोगे 200 ग्राम. 200 ग्राम उसको अच्छे से वापस फेंटोगे. जस्ट मेक द मिक्सचर कम टुगेदर एंड मेक इट लाइट एंड फ्लफी. इसके बाद आप ऐड करोगे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स. ड्राई इंग्रेडिएंट्स में आपका आएगा मैदा, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर. फोल्ड इट इनटू योर वेट मिक्सचर. देन यू ऐड द वाटर, विनेगर
एंड इसेंस। आप जो भी फ्लेवर का केक बना रहे हो उसका इसेंस, या फिर आप स्क्वॉश ऐड कर सकते हो। आप जो फ्रूट बनाना चाहते हो आप उसका इसेंस या फिर स्क्वॉश ऐड कर सकते हो। And then you can add some vinegar, and vinegar is optional, totally it's up to you if you want to use or not, but vinegar से crumbs ज़्यादा अच्छे आते हैं केक के। And some water into it, just fold it all together, तो एक हल्का उसको whip करना है so that it comes together and makes a homogeneous mixture, and then your batter is ready. Put it for baking for about 30 minutes. अभी जैसे अपने पास टाइम इतना है नहीं 30 minutes के लिए, so what I have done is I've already made a cake for you guys to show. The same cake, everything is same, no difference, but वो मैंने already bake करके रखा था because it needs half an hour for baking. So I'm just gonna get us a knife quickly. जैसे कि आप जानते हो कि नीचे तो बेकिंग पेपर अपन ने डाला है, तो नीचे से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। साइड से एक बार, ताकि जस्ट टू मेक श्योर दैट द साइड्स आर लूज, आप हल्का एक नाइफ इसको घुमा देना सो दैट साइड्स लूज हो जाती है। आपको पता कैसे चलता है कि आपका केक हो गया है? एक तो फर्स्ट की साइड जैसे थोड़ी सी छूट जाती है इसकी, सेकेंडली आप इसको टच करोगे ये वापस बाउंस बैक होता है, देखो ये बाउंस बैक हो जाता है। सो दिस शोज कि द केक इज डन इन द ओवन एंड दैट इज द टाइम यू टेक इट आउट। आप इसको प्रिक करके भी देख सकते हो, चक्कू छोटा सा चक्कू अंदर डाल के, अगर वो क्लीन आ जाता है यानी वो ठीक हो गया है, पूरा केक हो गया है। अगर थोड़े से उसमें बैटर रख के आता है तो यानी उसको और आपको बेकिंग की जरूरत है। सो इसको मैं उल्टा करूंगी, सॉरी, हाँ श्योरली यू कैन डेफिनेटली ऐड पाइनएप्पल टू द बैटर, बट मैं प्रिफर नहीं करती हूँ बिकॉज द रीजन, वन ऑफ द रीजन इज दैट कि पाइनएप्पल थोड़ा सा पानी छोड़ता है एंड द केक अगर आपको ज्यादा दिन तक उसको स्टोर करना है, सो आई प्रेफर कि वो पाइनएप्पल सिर्फ ऊपर ही हो और अंदर ना डालें। सो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट दैट यू विल गेट। आप इसको थोड़ा और ज्यादा कैरेमलाइज भी कर सकते हो ब्लो टॉर्च से, ताकि एक ऐसे ब्राउन कलर का वो पूरा शुगर कैरेमलाइज हो जाए। मैं आपको इसका क्रम दिखाती हूँ। तो अभी काफी गर्म है क्योंकि मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले ही इसको बेक किया था। सो आई जस्ट शो यू द इनसाइड ऑफ द केक। and the inside of the cake, ये एकदम स्पॉन्जी एंड मॉइस्ट। So this is our final product. आप जरूर ट्राई करना इसको, एंड किसी को भी कोई भी बेकिंग में प्रॉब्लम है, क्वेश्चंस है, दे कैन आस्क मी हियर or at my page, that's the Cake Secrets. You can see it here, the Cake Secrets. Yeah. Can we use whipped cream for? Yes, whipped cream would be a really nice addition to the cake. You can simply just add some whipped cream dollop over it, or you can add some nice decoration of whipped cream. You can definitely use whipped cream on the cake. It will just enhance the taste as well as the decoration. So I would like to thank Amol and giving me a chance and the other people to create something really nice at home with all the recipes, lovely recipes. And thank you everyone. Yes, I would definitely be posting the recipe when whoever is asking, I will be posting the recipe after this video immediately. And if you have any queries, you can definitely contact me at my page or my personal page, the Cake Secrets, or here in Amol and my profile Pranita Pawar. Thank you so much everyone. Happy baking.